India's rank in the world's Press Freedom Index has been steadily declining for a few years now. According to the World Press Freedom Index 2022, India's ranking further dropped to 150th position from 142nd. The Paris-based Reporters Without Borders in its report has described India as one of the world's most dangerous countries for the media. But the Government of India recently informed Parliament that it did not agree with these findings and called the methodology used by the organization questionable and non-transparent. Over the course of this podumentary, we will talk to numerous journalists who faced action in India for their reportage and find out what led to action against them. We have a number of journalists who are in custody in India for writing on various issues, whether it is Asif Sultan, who did a profile of the separatist leader Burhan Wani, or even somebody like Siddiq Kapan, who was actually just traveling to Hathras to cover the Dalit gang rape of the Dalit girl. Most of these are very severe charges, and under laws which are very draconian, whether it is the UAPA or the PSA, which is the laws that are being used against journalists, and putting them in jail for long periods of time. But there are a number of other journalists who are picked up on other charges. It could be on charges of spreading enmity, or charges of sedition, or charges of obstructing a public servant on duty. So the situation journalists face while on the field is really, really detrimental to their professional work. Journalist Shamira Singh was booked by the Tripura police in November last year under the Unlawful Activities Prevention Act. Following the Tripura violence, the journalist claims the police booked him under harsh sections of the UAPA for writing 3 words on Twitter: Tripura is burning. त्रिपुरा में एक एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ था, और उससे पहले बांग्लादेश में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं के ऊपर एक हमला किया था। तो उसी को लेके त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा था, और दीपावली के आसपास का ये टाइम था। तो उस जब मैंने सुना कि त्रिपुरा में वायलेंस हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और एक मस्जिद भी वैंडलाइज की गई है, रैलियां निकाली गई हैं, तो उसे लेके मैंने एक ट्वीट किया कि त्रिपुरा इज बर्निंग, और ये 3 शब्दों का ही एक ट्वीट था और कुछ मैंने नहीं किया। तो उसके बाद मुझे जिस दिन दीपावली थी उसी दिन मुझे एक कॉल आया कि तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगा दी गई है, और तुम्हारे जैसे करीब 102 लोगों पर लगाई गई है जिन्होंने ट्वीट किया या फेसबुक पे लिखा या यूट्यूब पे कुछ बोला। और उसमें यही है कि यूएपीए में आपको कोई जमानत नहीं मिल सकती शुरुआत में, मतलब आप प्री बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सीधे जेल हो सकती है सीधे। तो मैं उससे पहले ही, क्योंकि मुझे इंटरनली पता चल गया था कि मुझ पर यूएपीए लगा दी गई है, तो मैं तुरंत कोर्ट के लिए मैंने अप्रोच किया, और फिर अदालत ने उस एफआईआर को देख के, क्योंकि वो तो जस्ट हैरेस करने के लिए थी, तो उसे देखते ही अदालत ने लीगल प्रोटेक्शन मुझे दे दिया। While some journalists like Shamira Singh have faced police action, many others have lost their lives in the line of duty. This is Pawan Kashyap, brother of journalist Raman Kashyap, who was killed after Union Minister Ajay Mishra's convoy ran over a crowd of protesting farmers in Lakhimpur Keri district in Uttar Pradesh last October. हम नैनीताल से वापस आ रहे थे, तो हमें 4 बजे के 3:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला कि एक तिकुनिया में ऐसा कांड हुआ है। मैंने सबसे पहले भैया को फोन लगाया, भैया का फोन स्विच ऑफ आया। फिर कुछ देर बाद करीब 20 किलोमीटर में चला, फिर मैसेज मिला कि 4 लोगों की डेथ भी हुई है। तो तुरंत मैंने जो है पापा को फोन लगाया, मेरा भैया गए थे वहाँ, नहीं गए थे क्या है? तो बोले कि 12 बजे खाना खा के घर से निकले थे, बताया था कि वहाँ तिकुनिया जो किसानों का आंदोलन है और केंद्र प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, वो कार्यक्रम कवरेज करने जा रहे हैं। तो मैं पापा को बताया, मैं कहा वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई, फोन भैया का स्विच ऑफ है और बाकी कोई खबर नहीं लग रही है। और भी भैया के साथियों से भी जानने की कोशिश की। मैंने तुरंत, मेरे साथ में जो छोटा भाई था, मेरे बुआ जी के लड़के, मेरे दोस्त गाड़ी में थे सब लोग, तो मैंने कहा कि
भैया का फोटो तुरंत फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे भी कर सकते हो, तुरंत इसको जो फैलाओ। फैलाया गया फोटो, लेकिन फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला। घटना के 3 घंटे बाद जो है भैया, जो कि बाद में हमें पता मिला, जो भैया की बॉडी क्या हो सकता है जीवित थे या क्या था, तो उनको सीधे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। 9 बजे रात में हमने तहरीर दी थाने में भैया की मिसिंग की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगली सुबह 3 बजे हमें कॉल आया कि एक डेड बॉडी हमारे में पड़ी है, आकर आप लोग देख लीजिए। We also spoke to journalist Om Sharma, who faced action after he did a Facebook Live reporting the plight of migrant workers in 2020. Sharma was booked under the Disaster Management Act and various other provisions of the IPC. लाइव जो मैंने सिक्का होटल पे चलाया, माइग्रेंट लेबर का जो 250-300 लोग सड़क पे आ गए थे, उस लाइव में मैंने मेरा प्रयास उसमें यही था कि मैं इंडस्ट्री को, यहाँ के जो लोकल रसूखदार लोग हैं, मैं उनको बता सकूं कि आपको जो है वो इनकी हेल्प के लिए आगे आना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोविड से पहले, कोविड की बीमारी से जूझने से पहले ये लोग जो हैं वो भूख से मर जाएं। तो उसमें मैंने बकायदा इस लाइव में मैंने ये बात भी बोली है कि मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस इंडस्ट्रियल एरिया में कि आप लोग भी तभी सेफ रहेंगे, आपको इनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। तो वो लाइव मैंने चलाया। उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे को पता लगा कि उसमें मेरे पर एक FIR दर्ज की गई है। उसमें जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अपना कोविड की जो धाराएं उसमें मेरे पे लगाई गई हैं। और उस FIR में ये कहा गया है कि आपने जो लाइव चलाया है वो फेक था, वो झूठ था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे को टारगेट करना शुरू कर देता है कि मैं कोई भी पोस्ट डालता हूं तो उस पर उसको चेक किया जाता है, उसको वॉच किया जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कि हम कैसे इस पोस्ट पे जो है वो इस पे FIR कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जो है वो मेरे पर जो है वो टोटल 3 FIR, एक वो उस लाइव को लेकर और एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, कोविड की धाराओं के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो मेरे पे अलग अलग FIR जो है वो दर्ज की गई। We spoke to yet another journalist, Ashish Sagar, who has been an environment reporter for years. Ashish claims he faced police action after he started exposing the sand mafia in Uttar Pradesh. रिपोर्टिंग में करने लगा तो जून 2021 में अचानक से लगातार जब खबरें हुई तो ये घर पे आए। तो उसमें इन्होंने मेरी माँ को कहा कि आपका बेटा कहाँ है। माँ ने कहा वो घर से बाहर है। इन्होंने कहा अपने लड़के को समझा देना, बहुत उल्टा सीधा लिख रहा है और नहीं मानेगा तो घसीट करके ले जाऊंगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात में मेरे यहाँ अब 15 जून को मेरे यहाँ पुलिस आती है। फिर अगले दिन फिर भारी भरकम रात में 10:30 बजे पुलिस आती है। जब सारे पत्रकार पूछते हैं कि आप पुलिस वाले क्यों भेजे हैं SP साहब, PO साहब से, तो जवाब देते हैं कि हम तो गए ही नहीं थे। और कोतवाल साहब कहते हैं मैं तो VIP ड्यूटी में था। इसके बाद में फिर ये मामला चलता रहता है। तो इधर बीच में मुझे शंका होने लगी कि मेरे खिलाफ कुछ बड़ा किया जा रहा है। और 23/11/2021 को उन्होंने मेरी हिस्ट्री सीट खोल दी। हिस्ट्री सीट खोलने की जानकारी मुझे 5 जनवरी 2022 को मिली, जब सिपाही मेरे घर आया और उसने कहा कि आसिफ भाई आपके साथ ऐसा किया गया। हमने कापी मांगी, कापी नहीं मिली तो मैंने 6 तारीख को RTI फाइल कर दिया। 6 मुकदमे मेरे ऊपर धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, माफिया और इस तरह से करके जो राजनीतिक लोग हैं उनके द्वारा लिखाए गए थे। जिस आदमी ने 11 साल दिया समाज को, 12 साल, उसको आपने क्या क्या नहीं बनाया। डकैत बनाया आपने, उसको जो है हिस्ट्री सीटर बना दिया, उसको मतलब हर वो केस लगाया जो मुमकिन था। लेकिन मैं कभी जेल नहीं गया, कभी मेरी कोई जमानत नहीं हुई। मेरे केसों की संख्या बढ़ाया गया कि इसके माथे पर लिख दिया जाए कि ये अपराधी है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। In the course of this podumentary, we interviewed many journalists. Most agree that these international reports on the poor state of press freedom in India hold water, and the declining press freedom rankings reveal the dangerous state of the country's democracy. There was one case of a journalist who had to be produced. He had to report to the police station every Wednesday and every single week. Now he tried to appeal to the court that his daughter was getting married, so he needed to go to travel and he needed to make arrangements for his daughter's wedding, but the court did not agree with it. And once he told me, he said there was a breaking news and he had to go somewhere and cover it. This was a rural journalist, so you have to travel. So he had to actually travel, and then he wasn't able to
take that assignment up because he had to go to the police station and report every Wednesday as he has to do. That's still going on. So he loses out on assignment. हमारे इधर पर 2 सांबादिक मर्डर हुआ है। एक तो सांबादिक पत्रिका चंदन पत्रिका का आपका क्राइम रिपोर्टर वो मर्डर हुआ, दूसरा एक आजकल का रिपोर्टर है वो मर्डर हुआ। इसका ये मर्डर पर मैंने सीबीआई इंक्वायरी डिमांड की है। हम अभी तक 57 जर्नलिस्ट अटैक हुआ है, नॉट ए सिंगल वन अरेस्टेड इन दिस। India's media landscape has been rapidly expanding, so are its problems and vulnerabilities. The concentration of media ownership in the hands of a few mighty people, the politically partisan media, and the dearth of independent media outlets all seem to contribute to this sorry state of affairs. बड़ी यंग एज में जो है वो मीडिया में आया था यहाँ पे, मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन में मीडिया के साथ जुड़ा था और मैंने मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं कि किस तरह से जो है वो मतलब कुछ लोग चापलूसी करते हैं और जो लोग सरकार की या अफसरों की चापलूसी नहीं करते उनके खिलाफ जो है वो वैर उगला जाता है और उनको टारगेट करने की जो है वो रास्ते निकाले जाते हैं, जाल बुने जाते हैं कि कैसे हम जो है वो जो सच जो बोलता है या जो सच लिखता है या जो सच दिखाता है हम कैसे उसको अपने जाल में फंसा के जो है वो परेशान कर सकें, कैसे हम उनको जो है वो टारगेट कर सकें। When faced with a crisis, the journalist is often disowned by the media organization or left in the lurch to fend for themselves. Politically or ideologically aligned media companies, lack of job security, and organizational support often stop many journalists from taking risks, which greatly affects the quality of information dissemination. मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम सर की मीडिया संस्थान के साथ जुड़े हैं तो जो है वो अपने पत्रकार के लिए, अपने जर्नलिस्ट के लिए जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये देखता हूँ सरकार की जो मीडिया संस्थान भी हैं, जब कोई इश्यू होता है चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, चाहे वो अफसरों के अगेंस्ट हो या ऐसे कोई मामले सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट होते हैं तो वो अपने जो है वो पत्रकारों के ऊपर से जो है वो हाथ खींच लेते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं कि चलो अब आप जो है वो आप भुगतो, हम आपके साथ यहीं तक थे। मीडिया जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा केंद्र होता है, उस पर भाजपा समर्थित और आरएसएस समर्थित लोगों का कब्जा है। अखबार हैं वो भी भाजपा समर्थित हैं, टीवी है वो भी समर्थित हैं, एंकर हैं वो भी भाजपा समर्थित है। तो वैसे में लोगों के पास केवल इंफॉर्मेशन का एक ही टूल है कि वो सोशल मीडिया पर लिखें, सोशल मीडिया पर बोलें। अब इनका ये है कि ये उसको भी सप्रेस करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि लोग ट्विटर के द्वारा भी सूचनाएं आस-पास फैलाएं। Freedom of the press is a multi-dimensional issue. Are the journalists' right to report a story hampered by the organization or the state, by law enforcement agencies or other socio-cultural factors? At the heart of this issue is the question of who owns our media, public or power centers. एक टीवी चैनल को चलाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए और करोड़ों रुपए को लाने के लिए हर महीने सैलरी देने के लिए, कैमरे का खर्च उठाने के लिए, कैमरामैन का खर्च उठाने के लिए, रिपोर्टर का खर्च उठाने के लिए या उस पूरी बिल्डिंग और बिजली का या पानी का खर्च उठाने के लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए। और वो बहुत बड़ा बजट दो ही तरीके से आ सकता है, या तो जनता अपने कंटेंट के लिए पे करे, जो न्यूज वो देख रही है उसके बदले में पैसा दे, इसके लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल एक नया तैयार हो रहा है, या उसके लिए एडवर्टीजमेंट आती है। तो अभी क्या है कि इसमें एडवर्टीजमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा सरकार का होता है। तो सरकार अगर एडवर्टीजमेंट नहीं देगी तो आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो आप चैनल नहीं चला पाएंगे। Number of very good journalists, very well trained, very efficient people, very very good at information gathering. What they're supposed to do, are without work, are without jobs. Media houses have been, incredibly callous and irresponsible in the manner in which they have got rid of these very experienced journalists. So a lot of journalists are struggling. We have many startups which have now become, the space for the mid-career experienced journalists who lost jobs.
or who are finding it. Not just who lost jobs, but many of them who are finding the existing official so-called mainstream media space very, very restrictive. They have moved out to try and do some kind of journalism that they believe in. Freedom of the press is an integral part of any democracy, and it is essential to achieve a free society. When press freedom is hampered, the biggest casualty is not just democracy, but the society itself. Journalists must have the freedom to criticize, the freedom to oppose, and the freedom to expose wrongdoings. In the absence of this freedom, truth becomes a victim of lies, misinformation, and propaganda. अगर पत्रकार भी पतित हो जाएगा तो इस डेमोक्रेसी को, इस गणराज्य को, जो कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा, उसको बचाएगा कौन? जनता के लिए कौन लड़ेगा? नेता लड़ेगा नहीं, समाज सेवी लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको सोशल वर्क करना है तो उसके भी दूसरे तरीके। अब तो एनजीओ वाला सोशल वर्क हो गया है। जो रोटी दान करिए, 3 तो फोटो खिंचाइए, 1 पौधा लगाइए, 12 लोग फोटो खिंचाइए, तो वाली समाज सेवा हो गई। तो अब पत्रकारिता भी अगर उसी तरह से हो जाएगी कि वो भी नर्तकी की तरह नाचने लगेगी इनके कोठे में जाकर के, तो फिर इस देश को कौन बचाएगा? आवाम को कौन बचाएगा? हाथी पे खड़े वंचित समुदाय को कौन बचाएगा? इसलिए पत्रकारिता को तो बचाना ही पड़ेगा, और वो ऐसे बचे या वैसे बचे, चाहे रिफॉर्म होकर बचे, आंदोलन से बचे, किसी भी तरीके से बचे, लेकिन पत्रकारिता बचेगी तभी देश बचेगा, या नहीं तो मान लीजिए कि मुल्क खत्म हो जाएगा।